اے نمو کی بچی، سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ چل لا، میری کاپی مجھے واپس کر ورنہ میں تیرے بال کھینچوں گا۔ چلو ہٹو بدتمیز، تم کیا میرے بال کھینچو گے؟ میں تمہاری ٹانگ کھینچوں گی۔ اپنی حد میں رہو، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ میری کاپی ہے۔ دیکھ نمو، شرافت سے میری کاپی واپس کر دے ورنہ میں ابھی ممی کو آواز دیتا ہوں۔ ممی! چلو ہٹو بدتمیز، بزدل کہیں کے، ممی کو آواز دو گے؟ ممی کو تو میں بلاتی ہوں۔ ممی، ممی جلدی آؤ، یہ تمہارا لاڈلا میری کاپی واپس نہیں کر رہا۔ نمو چونٹی اور گولو چونٹا بری طرح آپس میں لڑ رہے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اچانک دونوں کا شور رانی چونٹی کو سنائی دیتا ہے اور وہ بھاگی بھاگی بچوں کے کمرے میں آتی ہے۔ ارے ارے ارے، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اس طرح سے کیوں لڑ رہے ہو؟ آخر کب تم لوگ لڑنا چھوڑو گے؟ میری تو جان کھا ماری ہے تم لوگوں نے، کیوں لڑ رہے ہو؟ ممی ممی، سمجھا لو اپنی بیٹی کو، میری کاپی واپس نہیں کر رہی، ہر روز میری کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتی ہے۔ میں بتاتی ہوں ممی، جھوٹ بول رہا ہے تمہارا بیٹا، کاپی میری ہے، مجھے میری دوست نے گفٹ کی تھی اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ میری کاپی ہے، تم ہی سمجھاؤ اسے۔ ارے چپ کرو تم دونوں، میرا دماغ خراب کر دیا ہے تم نے، دونوں چپ ہو جاؤ۔ ذرا دکھاؤ تو کون سی کاپی ہے جس کے لیے تم لوگ اتنا لڑ رہے ہو؟ بچے کاپی لے کر رانی چونٹی کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب رانی چونٹی نے دیکھا تو بالکل اس کے جیسی ایک اور کاپی کمرے میں رکھی تھی۔ ارے ستیہ ناس ہو تم دونوں کا، بدتمیز ہو، اس طرح کی دو کاپیاں ہیں تم دونوں کی، یعنی کہ الگ الگ کاپی ہے، لیکن یہ باہر سے دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ تمہاری کاپی ہے، حالانکہ اس جیسی دو کاپیاں ہیں۔ اب میں تم دونوں کو لڑتے ہوئے نہ دیکھوں بالکل بھی۔ توبہ ہے، یہ بچے تو ایک نہ ایک دن میری جان لے کر ہی چھوڑیں گے، اب تم دونوں کی آواز مجھے نہ آئے۔ سوری ممی، مجھے لگا تھا کہ یہ میری کاپی ہے۔ رانی چونٹی دونوں بچوں کو سمجھا کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور دونوں بچے اپنی اپنی کاپی لے کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رانی چونٹی کے دونوں بچے بہت ہی زیادہ لڑاکو تھے، ہر وقت ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور ان دونوں کی اس عادت کی وجہ سے رانی چونٹی بہت زیادہ تنگ تھی۔ اس دن رانی چونٹی نے ٹھان لیا تھا کہ رات کو سوتے سمے وہ اپنے بچوں کو ضرور سمجھائے گی کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا بہت بری بات ہے۔ رات ہو جاتی ہے، رانی چونٹی اپنے دونوں بچوں کو لے کر سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، میری بات غور سے سنو، آپس میں لڑنا جھگڑنا بہت بری بات ہے اور اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر تم دونوں ہر معاملے کو مل جل کر ہینڈل کرو گے تو تم دونوں کے لیے آسانی رہے گی، لیکن اگر تم دونوں لڑنا جھگڑنا بند نہیں کرو گے تو دوسرے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے اور تم دونوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے پلیز لڑنا جھگڑنا بند کر دو۔ تم دونوں تو اچھے بچے ہو نا؟ ہاں ممی، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، لیکن اپنے اس لاڈلے کو سمجھاؤ نا، یہ بالکل بھی بات نہیں مانتا اور ہمیشہ پہلے یہ جھگڑا کرتا ہے۔ ارے ارے ارے، چپ کر نمو کی بچی، ہمیشہ میری ٹانگ کھینچتی رہتی ہے، ممی جھوٹ کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں لڑتا، یہ لڑتی ہے ہمیشہ میرے ساتھ۔ ارے میرے بچوں، میں ابھی یہی تو سمجھا رہی ہوں، تم دونوں نے پھر سے لڑنا شروع کر دیا، کتنی بری بات ہے، آرام سے میری بات سن تو لو پہلے۔ ہاں ٹھیک ہے ممی، آج کے بعد ہم نہیں لڑیں گے، پکا پرومس، گاڈ پرومس۔ اور نمو تم کیوں نہیں بول رہی؟ ہاں ممی، میرا بھی تم سے وعدہ ہے، میں بھی جھگڑا نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ سب سو جاتے ہیں۔
अगली सुबह हो जाती है। दोनों बच्चे तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। रानी अपने घर के सारे कामकाज निपटा लेती है। अभी रानी चींटी काम करके फारिग होती है कि गोपी टिट्टा भागा भागा आता है। अरे अरे रानी आंटी, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिए, वहाँ आपका बेटा बुरी तरह से लड़ाई कर रहा है, जल्दी आइए। अरे क्या हुआ गोलू को? चलो चलो मैं जल्दी आ रही हूँ। रानी भागी भागी गोपी टिट्टे के साथ बाहर चली जाती है। जब वो जाकर देखती है तो वो रामू घोंगे के साथ बुरी तरह से हाथापाई कर रहा था। अरे 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 क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों लड़ रहे हो? गोलू छोड़ो उसे। गोलू, अरे ओ गोलू, मैं कहती हूँ छोड़ो। अब तुमने बाहर आकर भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। पहले तो बात कर तक थी, अब तुम बाहर के लोगों से भी झगड़ा करने लगे। चलो मेरे साथ, चलो जल्दी चलो घर। रानी चींटी गोलू को लेकर वापस घर आ जाती है। आज तो रानी पहले से भी ज्यादा उदास और परेशान थी, क्योंकि अब उसके बेटे ने बाहर के लोगों से भी झगड़ा करना शुरू कर दिया था। उफ मेरे खुदाया, नौबत अब यहाँ तक आ गई है। मुझे बहुत परेशान कर रखा है तुमने गोलू। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें अपनी माँ पर जरा भी दया नहीं आती। मैं हर रोज तुम्हें समझाती हूँ और रात को ही तुम मुझसे गॉड प्रॉमिस करके सोए हो। क्या ये था तुम्हारा प्रॉमिस? तुमने सुबह होते ही तोड़ दिया। क्या मम्मी, हर समय तुम मुझे ही कहती रहती हो। अरे वो रामू है ना, रामू के बच्चे ने मुझे बुरी तरह से थप्पड़ मारा था। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने भी उसको रखी 2 कान के नीचे। उफ खुदाया, गोलू मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अब अगर तुमने किसी से झगड़ा किया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मत कहना कि माँ ने हमारे साथ बुरा किया है। माँ की बात सुनकर निम्मो चींटी दुखी हो जाती है। नहीं नहीं मम्मी, तुम हमें बहुत अजीज हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते मम्मी। आइंदा छोड़ के जाने की बात मत करना। मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। मैंने तो तुम्हारे से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा। प्लीज मम्मी, आज के बाद छोड़ के जाने की बात मत करना। रानी चींटी फिर से अपने बच्चों को समझाती है। इस बार कुछ थोड़ा सा असर तो हुआ था, लेकिन दूसरे ही दिन फिर से असर गायब हो गया और दोनों बहन भाई फिर से लड़ने झगड़ने लगे। उस दिन रोटी के टुकड़े से लड़ाई हो रही थी। अरे गोलू के बच्चे, ये रोटी का टुकड़ा मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुमने मुझसे छीना क्यों? क्या? चल हट बदतमीज, तेरा कहाँ से आया रोटी का टुकड़ा? मम्मी ने ये मेरे लिए रखा था। दोनों बच्चे फिर से बुरी तरह झगड़ा कर रहे थे। उन दोनों की आवाज सुनकर रानी चींटी फिर से भागी भागी आती है, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ गंभीर हो गई थी। जब तक रानी चींटी अपने बच्चों को बचाने के लिए आती, गोलू चींटी ने एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा निम्मो चींटी के सर में दे मारा और निम्मो चींटी ने रोना शुरू कर दिया। मम्मी, देखो तुम्हारे बेटे ने मुझे मारा। उफ खुदाया, अगर बहुत ज्यादा लग जाती तो? गोलू के बच्चे, अगर उसका खून निकलना शुरू हो जाता तो मैं क्या करती? आखिर कब समझोगे तुम? अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तक तो तुम दोनों मुंह से झगड़ा करते थे और अब तुम लोगों ने हाथापाई भी शुरू कर दी। अब एक दूसरे को चीजें उठाकर मारोगे तुम लोग। बस बहुत हो गया, मैं अब मजीद सहन नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ तुम दोनों को छोड़कर। रानी चींटी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैग पैक करके घर से निकल जाती है। दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। निम्मो चींटी ने तो अपनी मम्मी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार रानी रुकने वाली नहीं थी।
रानी चींटी अपनी माँ के घर चली जाती है। अब दोनों बच्चे घर में अकेले थे। गोलू भैया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मम्मी तुम्हारी वजह से घर छोड़ कर गई है। ना तुम मुझसे झगड़ा करते और ना मम्मी हमें छोड़कर जाती। अभी भी तुम मुझे कह रही हो? तुम भी मेरे साथ बराबर की शरीक थी। अगर लड़ाई से इतना डर लगता है तो मत लड़ा करो ना मेरे साथ। शराफत से मुझे रोटी का टुकड़ा दे देती। इतना वबाल खड़ा करने की क्या जरूरत थी? निम्मो चींटी रोए जा रही थी। काफी देर रो लेने के बाद गोलू को एहसास होता है। ए बस भी करो यार, कितना रोगी तुम? मेरे कान पका दिए हैं तुम्हारे रोने ने। इस तरह रोने से मम्मी थोड़ी ना वापस आ जाएगी। अब ये सोचो कि मम्मी को वापस कैसे लेकर आए। मुझे नहीं पता, मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी घर पे चाहिए मुझे भैया। ले, अच्छा, मेरी बहन रो मत। तुम चुप करो वरना मैं भी रो दूंगा। जब गोलू ने बहन को प्यार किया तो वो रोना बंद हो गई। दोनों बहन भाई अपनी माँ को वापस लाने की तरकीबें लगाने लगते हैं। निम्मो, मुझे लगता है हमें घोंगा मासी के पास जाना चाहिए। वो ही हमें इस मसले का कोई हल बताएगी। हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं। दोनों बहन भाई घोंगा मासी के घर आ जाते हैं और आकर उसको सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो अब मैं समझी। गोलू बेटा, तुम्हारी गलती तो है। उस दिन तुमने मेरे बेटे को भी बुरी तरह से मारा था, याद है ना? कि भूल गए? देखो मेरे बच्चों, माँ को इतना नहीं सताते कि वो अपने बच्चों को छोड़कर ही चली जाए। गलत तो तुम लोगों ने किया है, लेकिन अब इसका उपाय सोचना पड़ेगा कि कैसे तुम्हारी माँ को वापस बुलाया जाए। घोंगा मासी, हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। गोलू भैया, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं भी बहुत बदतमीज़ी करती हूँ आपके साथ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस मुझे मम्मी चाहिए। हाँ मेरी बहन, मुझे भी एहसास हो गया है हमने मम्मी को बहुत तंग किया। चलो अब मम्मी को मना कर लाते हैं। हाँ बच्चों, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन आज की रात यहीं पर गुजारना होगी। कल सुबह चलेंगे तुम्हारी नानी के घर। बच्चों ने जैसे तैसे करके रात तो गुजार ली। अगली सुबह होते ही वो सब अपनी नानी के घर चले जाते हैं। घोंगा मासी जाकर रानी चींटी को भी समझाती है। देखो रानी बेटा, हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना। बच्चों को समझाना चाहिए। इस तरह से घर छोड़कर आना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी अब तुम्हारे बच्चों को मैंने समझा दिया है, अब वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अब वो तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं, तुम भी दिल बड़ा करो और उनको माफ़ कर दो। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलत किया। मम्मी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो वापस घर चलो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अरे मेरे बच्चे, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। चलो ठीक है, तुम झगड़ा नहीं करोगे तो मैं चलती हूँ घर, लेकिन प्रॉमिस करो आइंदा झगड़ा किया तो मैं फिर से घर छोड़कर आ जाऊंगी। और फिर रानी चींटी अपने बच्चों को माफ़ कर देती है और वो सब वापस अपने घर आ जाते हैं। देखा प्यारे दोस्तों, हमें भी अपने माँ बाप को कभी नहीं सताना चाहिए और आपस में लड़ाई झगड़ा करना बहुत बुरी बात है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में आने वाले किसी भी जीव, चाहे वो जानवर हो, परिंदा हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो या फिर इंसान हो, उसकी बुनियादी ज़रूरत एक घर है, जिसके बिना जिंदगी का तस्वर थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इंसान जंगलों में भी रहता था
तब भी वो बड़ी बड़ी गारों में रहता था। तो आसान बात यह है कि सर छुपाने के लिए छत का होना बहुत जरूरी है। तो आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो भी चींटियों के बिलों के बारे में ही है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह चींटियां अपने लिए बिल बनाकर उसमें रहती हैं और अपने लिए खुराक का इंतजाम करती हैं। दादी चींटी का काम था केवल बैठकर आदेश देना, क्योंकि वो बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। अरे अरे बच्चों, सर्दी शुरू होने वाली है, जल्दी जल्दी से अपने घर मजबूत कर लो, कहीं ऐसा ना हो बारिशें शुरू हो जाएं। हमारा घर तो कच्चा है, बारिश के पानी में बह जाएगा। अरे अम्मा, तुम क्यों फिक्र करती हो? हम हैं ना, और सब काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। हाय हाय, ऐसे कैसे फिक्र ना करूं? मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? हर रोज तुम घूमने फिरने निकल जाते हो, अरे ऐसे कैसे सब कुछ हो जाएगा? मामा चींटी जो पास ही दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी वो अंदर से आती है। अम्मी जी, मैं भी आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हमारे घर पे खुराक बहुत कम है, सर्दियाँ नहीं गुजरेंगी। आप इनको समझाइए ना कि ये घूमने फिरने मत जाया करें। अगर ये हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारे लिए खुराक स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। अरे खसमानो खाने हो, अब मैं भी तो वही बात कर रही हूँ, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं। मैं तुम्हारे पति से यही कह रही हूँ कि अब घूमना फिरना छोड़ दे और अपने घर पे तवज्जो दे। अम्मी जी, मेरे पास इस मसले का एक हल है। क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं और बच्चे मिलकर खुराक स्टोर कर लेते हैं और आप इनसे कहिए कि ये घर मजबूत कर लें। और ध्यान रखिएगा जी, इस दफा ऐसा ना हो कि हमारा बिल बारिश के पानी में बह जाए जैसे पिछली बार हुआ था और फिर हमें सारी सर्दियाँ एक पेड़ के तने में गुजारनी पड़ी। अरे क्या भाग्यवान, तुम भी ना, हर समय मौका चाहिए होता है मेरी क्लास लेने का। अब पता है ना, मेरी माताजी जो सामने बैठी है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अरे कह तो रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा सब। चलो ठीक है, आज से ही काम शुरू करते हैं। तुम बच्चों के साथ खुराक स्टोर करना, तो मैं घर मजबूत करने का काम शुरू करता हूँ। जब सब कुछ डन हो गया तो दादी जी बोली, अरे रानी, अरे ओ बिल्लू, अरे कहाँ हो तुम दोनों? घर पे इतनी जरूरी बातें चल रही हैं और तुम दोनों को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। दादी की बात सुनकर दोनों बच्चे कमरे से भागे भागे आते हैं। जी दादी जी आ गई, क्या बात है? क्या बात है दादी जी, आज हमें कैसे याद कर लिया? वैसे तो कभी अपने पोती पोता की याद नहीं आई आपको। ओए होए, दूर फिटेमो, अपनी दादी पर शक कर रहे हो? मैं भला तुम दोनों को याद क्यों नहीं करूंगी? अभी भी तो मैंने ही याद किया है ना। खुद से तुम दोनों ने सोचा कि दादी के पास ही 2 घड़ी जाकर बैठ जाएं। दादी ने इतनी बात की ही थी कि दोनों बच्चे सरगोशियों में हंसने लगे। उनको अपनी दादी को छेड़ने का बहुत मजा आता था। अच्छा छोड़ो ये सब, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चों, तुम दोनों ने आज से ही अपनी माँ के साथ खुराक लेने के लिए जाना करना है। सर्दियाँ आ रही हैं और ये सर्दियाँ हमें अपने बिल में रहकर ही गुजारनी होंगी। तो जब सर्दियों के लिए खुराक का इंतजाम नहीं होगा तो ये सीजन गुजारना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए हम सब मिल बांट कर काम करेंगे। बच्चों, आज से ही तुम अपनी माँ के साथ खुराक लेने जाओगे। और मेरी बात सुनो, हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक आटे की फैक्ट्री है। आज से ही तुम अपनी माँ के साथ वहाँ जाओगे और वहाँ से खुराक ला लाकर स्टोर करते जाओगे। मैंने अपने झुंड के दूसरे चूंटियों से भी बात कर ली है, वो सब तुम्हारे साथ जाया करेंगे। ठीक है दादी, हम आज से ही मम्मी के साथ जाएंगे, लेकिन ये तो बता दें कि ये काम कब तक करना होगा? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? नहीं बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई भी काम मेहनत से करें तो वो आसान हो जाता है। और हाँ, ये काम तब तक करना होगा जब तक बारिशें शुरू नहीं हो जाती। सब मान जाते हैं और उसी दिन से अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों, ये चींटी बहुत ही अक्लमंद स्पीशीज है।
और इससे बढ़कर मेहनत करने में चुंटी की कोई मिसाल नहीं मिलती। उसी दिन सब अपने अपने काम में लग गए थे। मामा चुंटी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने झुंड के साथ आटे की फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है। उधर पापा चिंटी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपना घर कैसे मजबूत करे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में आर्जी तौर पर घर बनाने का ही सोच रहा था। अरे बाप रे, समझ में नहीं आ रहा इतना मजबूत घर इतने से दिनों में कैसे बनेगा। मैं ऐसा करता हूँ, चिकनी मिट्टी से ही अपना घर बना लेता हूँ। चल भाई चिंटे, काम पे लग जा। पापा चिंटी भी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां से चिकनी मिट्टी ला ला कर रखते जा रहे थे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक थोड़ी सी मिट्टी जमा हो पाई थी। हाँ, अरे बाप रे, मैं तो इतने से काम से थक गया और अभी तो थोड़ी सी मिट्टी जमा कर पाया हूँ। यह हमारे माता जी भी ना बहुत ही ज्यादा शातिर हैं। आसान काम मेरी पत्नी जी और बच्चों को दे दिया और मुश्किल काम मुझे थमा दिया। पापा चिंटी थके हारे घर वापस आए थे। आ गए बेटा, आओ आओ मेरे पास बैठो। बहू, अरे बहू, मेरा बेटा घर आया है, इसके खाने के लिए भी कुछ लाओ। अरे क्या बात है बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ माँ। तुमने आसान काम उनको दे दिया और मुश्किल काम मुझे दे दिया। मैं सुबह से शाम तक मिट्टी उठा उठा कर थक चुका हूँ और अभी तक केवल थोड़ी सी मिट्टी ही जमा कर पाया हूँ। अरे खसमानू खाड़िया, भला अपनी माँ पर भी कोई शक करता है क्या? और तुझे क्या लगता है कि मैंने तेरी पत्नी को आसान काम दिया है? अरे वो काम भी मुश्किल है। हर रोज भोजन के साथ जाना, झुंड के साथ जाकर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। मामा चिंटी अंदर खड़ी दोनों माँ बेटे की बातें सुन रही थी। वो अचानक अंदर से बाहर आ जाती है। अरे रे रे, अजी, अगर आपको लग रहा है कि हमारा काम आसान है तो ठीक है, हम काम बदल लेते हैं। आप हमारे वाला काम कर लीजिए, हम आपके वाला काम कर लेते हैं। ये सुनकर पापा चिंटी खुश हो जाते हैं और फौरन से हामी भर लेते हैं। हाँ तो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। कल से तुम बच्चों के साथ मिट्टी उठाने जाना और मैं अपने झुंड के साथ आटे की फैक्ट्री जाऊंगा। ऐसा कहकर पापा चिंटी अंदर आराम करने के लिए चला जाता है। हाँ, बड़ा शौक है इसको तुम्हारे वाला काम करने का। करेगा ना तो लग समझ जाएगी कि वो काम भी इतना आसान नहीं था। चलो ठीक है बेटा, तुम कल बच्चों को लेके मिट्टी उठाने चली जाना। और अगले दिन से ही उन्होंने काम अदला बदली कर लिए थे। पापा चिंटी झुंड के साथ चले जाते हैं और मामा चिंटी बच्चों के साथ मिट्टी उठाने चली जाती है। ये काम बच्चों को बहुत पसंद आया था। वो दोनों बड़े मजे से भाग भाग कर मिट्टी के गोले उठाकर ला रहे थे। उन सब ने मिलकर एक दिन में ही सारा काम खत्म कर लिया था। जितनी मिट्टी की उनको जरूरत थी वो सारी की सारी मिट्टी जमा हो गई थी। याहू रानी, हमारा काम तो हो भी गया। ये गिव मी हाई फाइव। चलो बच्चों, अब घर चले, बाकी का काम कल करेंगे। उधर पापा चिंटी का आज भी मूड ऑफ था, क्योंकि उसको झुंड के साथ जाना भी मुश्किल लग रहा था। दादी चिंटी पापा चिंटी का मूड अच्छे से समझ रही थी, परंतु उसने आज उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज भी उसने उससे बात की तो वो ये काम करने से भी इनकार कर देगा। इसलिए उसको ना चाहते हुए भी झुंड के साथ जाना पड़ता। अगले दिन ही मामा चिंटी ने बच्चों को फिर से अपने साथ लगाया और अपने घर की मरम्मत शुरू कर दी। सारा दिन की कड़ी मेहनत के बाद अब उनका घर भी मजबूत हो चुका था। अब उनकी सर्दी आराम से गुजर जाने वाली थी। खुराक भी काफी हद तक स्टोर हो चुकी थी। अब दादी को ज्यादा टेंशन भी नहीं थी। अगले दिन से ही सर्दी की पहली बारिश भी होने लगी और अब सारी चींटियां अपने अपने बिलों में घुस गई थीं।
और वो पूरी की पूरी सर्दियां गुजार कर ही अपने घरों से बाहर आने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वाले के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और जो आलसी हो, जो मेहनत करना ना जानता हो, उसके लिए छोटा छोटा काम भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हरकत में ही बरकत है। एक समय की बात है कि एक जंगल में कुछ चींटियों का परिवार रहता था। चींटियां बहुत ही समझदार स्पीशीज हैं। वो अच्छे से जानती हैं कि उनको किस मौसम में क्या करना है। सर्दी आने वाली थी और चींटियों को भी अपनी सर्दी के मौसम की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो अपनी सर्दियों का इंतजाम करने में मसरूफ थी। पाली चींटी उनमें सबसे बड़ी थी। उसके आदेश पर सभी चींटियां रोज का बहुत ज्यादा काम कर रही थीं, ताकि वो ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर सकें। अरे रानी, अरे ओ बेबी, कहाँ हो तुम दोनों? अरे भाई बात सुनो, हमारे पास समय जाया करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अरे क्या हुआ पाली मासी, सुबह ही सुबह इतना शोर क्यों कर रही हो? लो भला, ये क्या बात हुई? अगर मैं भी शोर ना करूं तो तुम लोग तो बैठे ही रहो और फिर सर्दियों में खाने के लिए कुछ भी ना हो। अरे नहीं नहीं मासी, हम भी अच्छे से जानते हैं कि खुराक का इंतजाम नहीं करेंगे तो सर्दियां गुजारनी मुश्किल हो जाएंगी। हम काम कर तो रहे हैं, और क्या करें भला? देखो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि कल से तुम लोग पहले से भी ज्यादा काम करो। पहले 6 घंटे काम करते हो, अब 8 घंटे काम करना होगा। मैं अपनी सूंघने की हिस्से बता सकती हूँ कि बहुत जल्दी एक तेज तूफान आने वाला है, और इससे पहले ही हमें सारी की सारी खुराक स्टोर करनी होगी। तूफान के बारे में सुनकर बेबी और रानी दोनों थोड़े चिंतित हो जाते हैं। अरे रानी, अब क्या होगा? पिछली बार भी पाली मासी ने तूफान के आने की खबर दी थी, तो साथ ही 2 दिन में तूफान आ गया था। अब क्या होगा? क्या वाकई हमें 8 घंटे काम करना पड़ेगा? हाँ बेबी, काम तो करना पड़ेगा, वरना सर्दियां गुजारनी मुश्किल हो जाएंगी, और भूखे तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता ना। तो फिर तुम ही बताओ ना कि हम क्या करें और कहां से इतनी ज्यादा खुराक का इंतजाम करें। अरे बेबी, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह परेशान हो रही हो। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर आटे की फैक्ट्री है। हम वहां से ढेर सारा आटा लाकर स्टोर कर लेंगे। क्या सच्ची? चलो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम झुंड के साथ मिलकर ही जाएंगे ना। और फिर वो दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं कि वो अपने झुंड को साथ मिलाकर आटे की फैक्ट्री जाया करेंगे और हर रोज वहां से आटा लाकर स्टोर किया करेंगे। अगले दिन ही एक बहुत बड़ा झुंड आटे की फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाता है। सबने छोटी छोटी थैलियां ले ली थी। बढ़े चलो, रुके ना अपना कारवां, बढ़े चलो, खुराक अपनी पूरी है, काम करना जरूरी है, बढ़े चलो, साथी और चलो, बढ़े चलो। सारा झुंड आटे की फैक्ट्री की तरफ मार्च कर रहा था। सभी चींटियों ने बड़ी मेहनत से काम किया था और अपनी अपनी थैली को भरा। सब वापस अपनी थैलियां उठाए घर आ रहे थे। बेबी चूंटी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो चूंटी से थोड़ी पीछे रह गई। अरे बाप रे, जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में ये थैली मैंने कुछ ज्यादा ही भर दी। अब इसे उठाकर चलना मुश्किल हो रहा है और मेरा झुंड तो बहुत आगे निकल गया। बेबी चूंटी खुद से ही बातें किए जा रही थी और चलती जा रही थी।
कि अचानक एक तंग रास्ते से गुजरते हुए ठोकर लगकर गिर जाती है। बेबी बेचारी का सारा आटा गिर गया था और उसके आसपास भी कोई नहीं था। उसके झुंड की सारी चूंटियां बहुत आगे निकल चुकी थीं। आह, अरे रे रे, ये क्या हो गया? मैं तो पहले ही पीछे रह चुकी हूँ और ऊपर से ये आटा भी गिर गया। अगर खाली हाथ घर जाऊंगी तो पाली मासी को क्या जवाब दूंगी कि सारा दिन कहाँ गुजार कर आ गई। बेबी बेचारी फिर से आटा उठाकर वापस थैली में डालने लगती है और ये काम करते करते शाम हो जाती है। हाँ, चलो हो गया सारा काम। मैंने आटा वापस डाल दिया। हाँ, अरे बाप रे, ये क्या, रात हो गई। अब तो कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? बेबी को फिर से आटा वापस डालते हुए रात हो जाती है और उसको अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि वो काम में इतनी मसरूफ थी कि उसको टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। उधर रानी चूंटी को घर पहुंचते हुए बहुत समय गुजर गया था। अरे रानी, बेबी कहाँ है? अब तो तुम्हें आए हुए भी बहुत समय गुजर गया है। कहाँ छोड़ आई हो उसको? हाँ मासी, मैं भी यही सोच रही हूँ। शायद वो झुंड से पीछे रह गई थी। मुझे लगा पीछे पीछे आ जाएगी, लेकिन वो तो नहीं आई। अब तो रात हो गई है। पाली और रानी दोनों बेबी के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन रात के समय वो क्या कर सकते थे? उनको रात को दिखाई जो नहीं देता, वो परेशानी में ही उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर बेबी चूंटी भी बहुत परेशान हो गई थी और उसको रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। मुझे इस समय खुद पर काबू रखना होगा, वरना मैं रास्ता भी भूल जाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, यही कहीं आसपास कोई पेड़ पौधा देख लेती हूँ रहने के लिए। लेकिन एक समस्या है, मैं खुद तो रहने के लिए जगह ढूंढ लूंगी, लेकिन ये आटे से भरी हुई थैली का क्या करूं? इतनी मुश्किल से इतनी दूर से उठाकर लाई हूँ। मैं इसे खोना नहीं चाहती। मुझे इसे सही सलामत वापस घर तक लेकर जाना होगा। अभी बेबी इसी परेशानी में थी कि तूफान आने के संकेत नजर आने लगे। अरे मर गई यार, लगता है तूफान भी आ रहा है। अब क्या होगा? मैं ये आटे से भरी हुई थैली कहाँ छुपाऊं? अगर ये गीला हो गया तो खाने के काबिल नहीं रहेगा। इसी दौरान तेज हवा चलने लगती है और बहुत कोशिशों के बाद बेबी चूंटी ने अपने आप को हवा के हवाले कर दिया, क्योंकि हवा बहुत तेज थी और उसके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसने आटे की थैली को मजबूती से पकड़ रखा था। उसको तेज हवा में भी केवल एक ही बात याद थी कि उसने आटे की थैली जाया नहीं होने देनी। हाय रब्बा, मुझे बचा लो, मैं क्या करूं? प्लीज अल्लाह जी मेरी मदद करो। बेबी ने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह से मदद मांगने लगी। आखिर बहुत कोशिशों के बाद बेबी को तेज हवा ने एक पेड़ के तने में फेंक दिया। यह जगह रहने के काबिल थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो महफूज जगह पर थी। ओह, लगता है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। चलो शुक्र है, मेरा आटा गीला होने से बच गया। अब चाहे तेज बारिश आ जाए कोई परवाह नहीं। बेबी चूंटी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहीं रहने के लिए तैयार हो गई जब तक तूफान नहीं थम जाता। उधर तूफान की वजह से पाली और रानी को भी सारी रात नींद नहीं आई। अरे रानी, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस परेशानी में होगी, और इस तूफान को भी आज ही आना था। कैसा जालिम तूफान है। अरे रानी, तुम क्यों मेरी बच्ची को पीछे छोड़ आई? उसको साथ लेकर क्यों नहीं आई? पाली मासी, मुझे तो खुद बहुत परेशानी हो रही है।
हमारे पास आटे के जो थैले थे वो बहुत भारी थे, उनको उठाकर चलना बहुत मुश्किल था। हम सबको अपनी अपनी पड़ी थी, इसी वजह से शायद मेरे भी ध्यान में नहीं रहा। लेकिन आप फिक्र मत करें, वो जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। इसी फिक्र में उन दोनों की भी सारी रात कट जाती है। अगली सुबह तूफान तो थम गया था, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी। सुबह ही सुबह रानी ने अपनी बहन को ढूंढने का प्लान बनाया। उधर बेबी भी अपने आटे की थैली उठाए सुबह ही सुबह पेड़ के तने से बाहर निकली और वापस घर को चल पड़ी। आधे रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अरे मेरी बहन, तुम बिल्कुल ठीक हो। खुदा का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ओह, तुम सोच नहीं सकती तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हाँ रानी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें घर चलकर बताती हूँ कि खुदा ने मेरा कितना साथ दिया और किस तरह से मैंने ये तूफानी रात बसर की। रानी चूंटी ने अपनी बहन बेबी का बोझ बांट लिया था। दोनों मिलकर आटे की थैली उठाए वापस घर आ जाते हैं। अरे बेबी, माँ सदके मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? तुम सोच नहीं सकती, सारी रात मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सो सकी। शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो मेरी बच्ची। तूफान तो आकर थम चुका था, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई थी कि उस सारे चक्कर में बेबी चूंटी ने हिम्मत नहीं हारी और आटे की थैली को बचाए रखा। अब उनकी सर्दियां आराम से गुजर जाने वाली थीं। उनको बाहर निकलकर काम करने की जरूरत नहीं थी। देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन में पुख्ता इरादा कर लें तो हर काम मुमकिन है।